So now let's start today's class where I'm going to make you do few things or make you explain few things which are extremely important for it. Okay. So first of all, in the last few classes, we have done all the things of closed-ended, open-ended questions, questionnaire, mode of data collection, personal interviews, telephone interviews, mailing questionnaire, or internet survey and all. Pilot survey. What do you mean by pilot survey? Pre-testing. What do you mean by method of sampling? Random sampling like lottery method, table of random numbers, exit polls, non-random sampling like judgment purposes, deliberate sampling, quota sampling, convenience sampling. Then we have done sampling and non-sampling errors, where we have found out about what are the sampling errors कि sample जब हम बनाते हैं तो क्या errors आ सकते हैं और क्या errors है जो कि non-sampling errors है. Okay, so all this we have done. Now we need to know about the important agencies of secondary data which is in India. India में कौन कौन से important agencies है जो secondary data हमें present करते हैं और उस data के भरोसे there are political parties, there is the government, there is the media person, or whenever we debate or we do a group discussion, we work through those data because these are the agencies who are certified to collect the data and respond. Sorry sir, गलती से होना. Yes. So first important agency is Census of India. Census of India, it provides the most important and complete demographic record of population. Now, Census of India is the most important agency of India because it provides us the information related to the population in our country. Not only how much of the population of India is there, but also the analyzation and interpretation is also done by this agency. They try to find out the data. All right, after every 10 years, we come out to know about the census report. Like 2011, we have got a population. Now 2021, we are going to come out with our what is the population of India. All right. So in 2021, we'll also come out to know about the growth of all the religion-based. All the religion-based population. That means how much Hindus are there, how many Muslims are there, how many Jain is there, how many Buddhists, Christians are there. So it will provide all the data and will present to us, and with the help of those data only, the government tries to formulate new kind of policy. All right. So that's why it is said that Census of India is one of the most important agencies which provides us the data or the secondary data. All right. These are conducted every 10 years. The census official collects information on various aspects of population such as sex ratio, literacy, migration, etc. In fact, the migration from Gujarat to Bihar, or from Bihar to Mumbai, how many migrated people are residing in those states is also being collected by them. How many of them are literate and how many of them are not literate is also collected by them. What is the sex ratio? Sex ratio means how many of them are basically female and how many of them are basically male. So all these things are also being provided by the census data. Now, there is one more important thing. In 2011, we came out to know that we are a youthful country. Alright, why? Because around 60% of India's population is under the age of 40. Okay, now in 2021, we'll come out to know about how much more percentage has been added to that, or how much has been deducted from that. So it is very important that 2021 census comes out and we get a proper data of that our country is moving towards being young only, or we are becoming an old country slowly and gradually. Okay. And these are used to interpret and analyze to understand many economic and social issues in India, and accordingly plans and policies are formulated. So now, as I said you, this census of India gives us all the population ratios. ये हमें प्रोवाइड कराता है सारे पॉपुलेशन रेशियोज, कम्युनिटी रेशियोज, सेक्स रेशियोज, ये सब जब हमें प्रोवाइड करा देता है तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, आपके डिफरेंट एनजीओ हो गए, वो अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं कि आगे कैसे काम करना है हमें. दैट्स व्हाई दिस डेटा आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ वी नीड टू थिंक फ्रॉम द बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड ऑल. ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. There is one more important agency which works in India, that is National Sample Survey Organization, which is also called NSSO. All right, it was established in 1950 under the Ministry of Finance
to conduct surveys and collect data on estimates of literacy, school enrollment, maternity, PDS, etc. to publish surveys through reports. Now, what does NSSO does? It conducts surveys and collect data on what? On literacy, on school enrollment. कितने लोग स्कूल में एनरोल कर रहे हैं, कितने लोग स्कूल छोड़ के बाहर निकल रहे हैं. ये जो हमें डेटा बार बार मिलता है ना कि क्लास 8 के बाद इतने लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, या फिर क्लास 12 के बाद इतने लोगों ने पढ़ाई नहीं की, ये लोग इतने लोग बाहर निकल गए, ये सब डेटा कलेक्ट करने का काम है NSSO का. वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि ये सारे डेटा कलेक्ट किए जाए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसीज जो होते हैं वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं. जैसे अभी अगर NEP आएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो ड्राफ्ट पास हुआ है और जो एक्ट बनेगा आने वाले टाइम में, वो किस बेस पे हुआ होगा? वो भी इसी बेस पे हुआ होगा कि पिछले 30-40 साल से उन्होंने डेटा को रीड किया होगा, उन्होंने फाइंड आउट किया होगा कि अच्छा इतने लोग क्लास 8 तक तो पढ़ रहे थे, इसके बाद नहीं पढ़ रहे. या फिर जो रियलिटी है वो सीन क्या है कि क्लास 8 या क्लास 10 तक लड़कियां पढ़ती है, लेकिन काफी अमाउंट ऑफ रेशियो जो होता है, परसेंटेज ऑफ रेशियो जो होता है, वो निकल जाती है क्लास 8 के बाद या क्लास 10 के बाद. रीजन हमें पता है इंडिया के अंदर सोशल बेस्ड बहुत सारे रीजन है. पेरेंट्स पढ़ाते नहीं है. गांव में जाओगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी. आप अभी आप जिधर बैठे हुए हो घरों के अंदर, आपको लगेगा सब झूठ बोल रहे हैं. No, I'm not saying the lie. This is the basic truth of India. आप अगर गांव में जाओगे तो you will realize that there are girls who are studying till 5th or 8th, and after that their name are chalked out. Why? Because that early marriage हो जाती है उनकी, या पेरेंट्स कहते हैं इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, इसको घर के काम करवाओ. नो डाउट घर के काम इम्पोर्टेंट है, बट इट्स द सेम थिंग. घर के काम विथ स्टडीज एंड स्टडीज विथ घर के काम, बोथ आर इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर बॉयज. तो ये जो चीज होती है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि कितने रेशियो में लोग एनरोल कर रहे हैं और लोग आउटसाइड जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई छोड़ रहे हैं. ये सारे काम कौन कर रहा है? NSSO कर रहा है. और क्या क्या काम करता है वो? मैटरनिटी, कितने लोग माँ बने, कितने नए बच्चे पैदा हुए, ऑल दिस थिंग्स, ये जो सारे डेटा होते हैं कलेक्ट करती है NSSO, और वो कुछ फॉरवर्ड कर देती है गवर्नमेंट के सामने, या फिर पूरे जर्नल के रूप में या रिपोर्ट के रूप में वो ऑल ओवर दी इंडिया की पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है उसके सामने प्रेजेंट कर देती है. अब उसके बेस पर आगे का काम होता है कि सक्सेसिव ईयर्स के अंदर या फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है वो कैसे प्लान बनाएगी और कैसे, हाउ विल दे इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दोज पीपल हुज कंडीशन इज नॉट इम्प्रूविंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स. नंबर 1. नंबर 2, आप कैसे इक्वालिटी पे लेके आओगे सारी चीजों को. ठीक है, जैसे एक स्मॉल सा डेटा प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर. कॉन्स्टेंट 2004-2005 रुपीज पर पर्सन पर मंथ. ठीक है, रूरल और अर्बन कंजम्पशन में कितने रुपए लोगों को मिलते थे? देखो, अगर आप 1972-73 में देखोगे तो जो रूरल पीपल है वो 4 से 5 रुपए पर पर्सन पर मंथ कमाते थे, और जो अर्बन पीपल है वो 779 रुपीज पर पर्सन पर मंथ कमाते थे. यही 2004 और 5 में 1972 से 30 ईयर्स के गैप के बाद 405 से सिर्फ 559 हुआ रूरल पॉपुलेशन के अंदर जो अर्निंग है. बट जो अर्बन पॉपुलेशन की अर्निंग है वो बढ़ के 1052 रुपीज हो गई. तो ये जो शिफ्ट हो रहा है रूरल से अर्बन की ओर, जो लोग रूरल प्लेस से निकलकर, गांव से निकलकर शहरों में आ रहे हैं, मेट्रो सिटीज के अंदर घुस रहे हैं और इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रहा है कि रूरल एरियाज में वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज ओवर देयर, या फिर हम लोग उसको प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं दे पा रहे हैं उनको. तो जब उनको लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं मिलते तो क्या करते हैं, वो वहां से निकलकर किसी भी सिटी में आते हैं. बट जब वो सिटी में आते हैं तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो होती है वो और गिरी जाती है, अच्छी नहीं होती. वाई? बिकॉज जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम. अब मुंबई के अंदर चौल में भी लोग रह रहे हैं, और अभी जब बारिश आई थी तो इफ यू हैव सीन द वीडियोज ऑफ मुंबई तो आपको पता चला होगा कि किस कंडीशन में लोग रहते हैं, बट दे स्टिल लव लिविंग इन मुंबई. वाई? बिकॉज उनको बहुत बड़ा शहर दिखता है, बड़े आराम से चीजें अवेलेबल होती है, बोलते हैं ना कि एक कंफर्ट जोन मिल जाता है कि हाँ यहीं पर रहना है, चाहे कितना भी दुख करना पड़े, दिस इज अ गुड प्लेस टू लिव. तो ये जो मेंटालिटी है इसको चेंज करने के लिए जो डेटा, जिसका एनालाइजेशन, उसका इंटरप्रिटेशन और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी फॉर्मुलेट करना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है सेकंड चैप्टर के जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो खत्म होता है. If there is any doubt by anyone related to all the things which I shared with you yesterday, मेरे ख्याल से मैंने सैटरडे को आपको ये पूरा का पूरा PPTS फॉर्म भेज दिया था. अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट है, आपने चैप्टर उठा के पढ़ा हो एनसीईआरटी बुक से या सीआर जैन और वीके ओडी की बुक अगर किसी के पास हो पढ़ा हो, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, रेज योर हैंड और डायरेक्टली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी सम क्वेश्चन इफ यू वांट टू.
So if it is visible to you all, statistics, economics, chapter number 2, collection of data, TR Jain and VK Ori book solutions. Why I have written chapter 2, collection of data? Why? Because according to NCERT book, 2 chapters have been converged into one. But in TR Jain and VK Ori book, which is a reference book which we are going through for this year, वो इसी चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. एक सेंसस एंड सैम्पलिंग डेटा को भी बनाया हुआ है. इसके भी क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा एंड डिस्कस कर लूंगा. तो पेज नंबर 27 अगर आप इसका निकालोगे न्यू बुक के अकॉर्डिंग, न्यू पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आएगा पहला क्वेश्चन आपका, यू आर टू कंडक्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ स्कूल. हु आर योर इन्फॉर्मेंट? व्हाट डिफिकल्टीज डू यू एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर इन सच एन एक्सरसाइज? नाउ आई वुड लव टू आस्क Vedansh Agarwal. Vedansh, unmute yourself and give me the answer of this. That आपको क्या लगता है? आप हिंदी में बड़े आराम से आंसर करिए. नो नीड टू हैव दैट टेंशन इन योर माइंड कि गलत हो गया तो क्या होगा. कि आपको कोई कंडक्ट करना है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन टीचिंग के ऊपर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर स्कूल के अंदर, तो आपके इन्फॉर्मेंट कौन होंगे और क्या क्या डिफिकल्टीज आप एक्सपेक्ट करते हो एनकाउंटर करने, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको होगी ये एक्सरसाइज को करने के, ये डेटा को कलेक्ट करने में. यस वेदांश अग्रवाल. हाँ जी बेटा बोलिए. यस मनीष, आई एम हियरिंग इट. They will be students because they are the ones who are studying, so they should be the ones who should be judging because they are the ones receiving the content. And the challenges are going to be that डाटा कलेक्शन में शायद एक चैलेंज है कि कुछ स्टूडेंट्स सही से जवाब ना दें, कुछ स्टूडेंट्स बायस्ड हों. टीचर्स क्योंकि बायस्ड वो इसलिए हो सकता है क्योंकि डेटा पब्लिशिंग के बाद वो सर होते हैं ना सर टीचर्स पेट्स, तो कई बार मक्खन लगाने के करने की वजह से अपना कुछ भी झूठ बोल सकते हैं कि अनबायस्ड ओपिनियन दे दे ऐसे सोच के, और फिर डेटा पब्लिशिंग के बाद भी प्रॉब्लम आएंगी. Okay, what can be the problem after data publishing? डेटा पब्लिशिंग के बाद अगर किसी भी टीचर को जिसने मैंने जज किया है, अगर उसको पता चल गया कि मैंने उसे किसी गलत तरीके से जज कर लिया या फिर मैंने उसे किसी नेगेटिव वे में दिखा दिया, तो दे विल बी ऑब्जेक्शंस कि आपने ये डेटा क्यों पब्लिश किया, आपके डेटा का सार क्या है. सिर्फ ये डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको बुलाया गया. अगर आप ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ो तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज क्या है? डेटा कलेक्शन का है. ओके, तो आपको जो एनकाउंटर कर रहे हो प्रॉब्लम, वो भी डिफिकल्टीज है, सिर्फ इसकी बताने की डेटा कलेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं. ओके ओके सर, अंडरस्टूड. चलो तो हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं. इफ यू वांट टू नो द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ स्कूल, देन आवर इन्फॉर्मेंट in a school, then our informants will be the students studying in that school. Obviously हम अगर एलपीएस के अंदर, लियाल पब्लिक स्कूल के अंदर कोई भी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि टीचिंग की क्वालिटी क्या है और कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट पे जाके पूछना पड़ेगा. हम टीचर पे जाके नहीं सवाल जवाब कर सकते कि बताओ भैया आप कैसा पढ़ाते हो. तो इट वी विल हैव टू गो टुवर्ड्स द स्टूडेंट. अब डिफिकल्टीज क्या क्या आ सकती है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में? This method is expensive in terms of the time spent, money and efforts involved. अब मैंने आपको कल बताया था कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप जाके करते हो तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मनी लगती है और एफर्ट बहुत ज्यादा लगते हैं. वाई? बिकॉज आप सिर्फ क्लास से नहीं पूछ रहे, वो टीचर जिस क्लास में पढ़ाता होगा आप इन सबसे जाके पूछोगे. और दूसरी बात क्या है कि आप सैंपल सर्वे कर रहे हो कि पूरा सर्वे कर रहे हो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन सर्वे कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग पॉपुलेशन सर्वे तब तो ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज और ज्यादा मनी लगेगी, और ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, हर बच्चे से पूछना पड़ेगा. और अगर सैंपल सर्वे कर रहे हो तो आप इसका मनी और एफर्ट जो है वो आप गिरा सकते हो यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट चांसेस ऑफ पर्सनल बायस ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट. अब देखो ये जो अभी राहुल ने जो आंसर दिया था विच वाज सो करेक्ट, दैट आप किसी भी स्टूडेंट के पास जाओ, उसका एक फेवरेट टीचर होता है. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, वो कहीं ना कहीं कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी की गुड बुक्स में आने के लिए कुछ भी सही और गलत बोल देंगे. नहीं भी अच्छा पढ़ा रहा होगा, नहीं भी मजे आ रहे होंगे उसको, तो भी गुड बुक्स में आने के लिए नहीं बहुत अच्छा करता है भाई साहब, मजे आ जाते हैं उसकी क्लास के अंदर. वाई? बिकॉज वो पर्सनल बायस, और रिजल्ट के बाद हो सकता है कि उसको ये लगे कि जब टीचर को पता चलेगा उसके नाम से कि हाँ मैंने तो ये आंसर दिया था, तो
टीचर आज उसको सपोर्ट करने गया और वो उससे गुड बुक्स आ जाए। तो राहुल वेरी गुड, वेल डन, आप एकदम सही जगह पर हिट किया आपने व्हेन यू सेड दिस। And next, since the field of investigation is large, that it will be difficult to approach each and every student of this field, जो हमने अभी बात करी थी। इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत लार्ज है, तो हर बच्चे के पास पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल सर्वे करना पड़ेगा अगर आपको ये। लेकिन जब आपको डिफिकल्टी पूछी जाती है क्वेश्चन के, तो आपको सिर्फ वही इतना ही आंसर देना, आपको अपनी राय नहीं बतानी, आपको सिर्फ डिफिकल्टीज बतानी है क्या क्या आ सकती है। इसलिए इसके अंदर वो राय नहीं बताएगी कि हम सैंपल सर्वे करके भी निकाल सकते हैं। Okay, now towards the next question. पेज नंबर 29 जब आप खोलोगे तो वहां पर अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, you are keen on finding statistical information on available healthcare facilities in your locality comprising 200 families. हर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से रीड करिए और अपना इकोनॉमिक्स वाला दिमाग चलाना स्टार्ट करिए, स्टैटिस्टिक्स का जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसके हिसाब से। आपको आप कीन हो, आपको इंटरेस्ट है कि आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकालना है हेल्थ केयर फैसिलिटीज का आपके एरिया के अंदर, जिसके अंदर 200 फैमिलीज रहती है। हाउ वुड यू अप्रोच द इशू एंड विच मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड यू प्रेफर टू अडॉप्ट, गिव रीजन। आप कैसे अप्रोच करोगे इस इशू को, और दूसरा कौन सा मेथड अपनाओगे इन्वेस्टिगेशन का इसका डेटा कलेक्ट करने के लिए, और जो भी आप मेथड अपनाओगे उसके पीछे का रीजन बताइए क्यों अपनाओगे। Yes, anyone, please give me the answer of this according to you. सही गलत is not important. What is important कि you are using your common sense, you are using whatsoever we have studied up till now. आप उसको यूज करके उसका आंसर बता रहे हैं। Good afternoon, go for it. Sir, in this I prefer to use indirect oral investigation because this is very large to know। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे 200 फैमिलीज को हमें जब इसका डाटा कलेक्शन करना है, तो उसमें हम अगर हम डायरेक्टली पर्सनली जाकर करेंगे तो इट विल कंज्यूम वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, और हो सकता है बायसनेस भी हो जाए बिकॉज हमें पता नहीं, अगर हम इनडायरेक्टली करते हैं तो हमें पता नहीं हम जनरली किससे बात कर रहे हैं, किस बेसिस पे कैसे बात कर रहे हैं, तो उस पे वो हमारा मतलब हम काफी कवर भी कर सकते हैं और हमारा मतलब एक्सपेंसिव भी वो लेस होगा। अब देखो आपने आंसर भी दे दिया मुझे, नो डाउट यू हैव गिवन द आंसर वेरी गुड, दैट द राइट आंसर मोस्ट, लेकिन आपने साथ में इसकी प्रॉब्लम भी बता दिया। अब देखो जब आप लोग आंसर लिखते हो ना तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में भी यही देखा है, अभी भी यही देख रहा हूँ, व्हेन यू आर गिविंग द आंसर, खुद ही आंसर भी दे रहे हो, आप खुद ही प्रॉब्लम भी बता रहे हो, जो आंसर दे रहे हो उसी का प्रॉब्लम बता रहे हो, जबकि वो नहीं पूछ रहा आपके क्वेश्चन। आपसे पूछा क्या है, हाउ वुड यू अप्रोच द इशू एंड विच मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड यू प्रेफर टू अडॉप्ट, गिव रीजन। अब आपने कहा कि आप ओरल इन्वेस्टिगेशन करना पसंद करोगे, टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन ओरली आप पसंद करोगे। अब जब आप वो पसंद करोगे तो आपको रीजन बताने उसके सपोर्ट में, उसके अगेंस्ट में मत बताओ आप रीजन। आपने भी बता दिया कि कौन फोन उठा रहा है पता ही नहीं चलेगा, कौन आंसर कर रहा है, तो क्या होगा, आप अगर ये आंसर लिख के आते हो तो जो इन्वेस्टिगेटर है, जो आपका रिजल्ट, जो आपका क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहा है, एग्जामिनर है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पहले तो आंसर राइट कर देगा पहला पार्ट, सेकंड पार्ट में गिव रीजन में आप पूरे गलत हो जाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को सपोर्ट करें तो उसके सपोर्ट का आंसर लिखो, उसके अगेंस्ट में मत बोलो आप आंसर से। ओके ओके सर, okay, thank you. Now let's get the answer. If we want to collect the data on the healthcare facilities in our locality, we can go with the indirect oral investigation option. Very good Vahini, that was great. आपने आंसर दिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था कि हम लोग जाएंगे। ठीक है, अंडर दिस मेथड द इंफॉर्मेशन इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड पर्सन। कंसर्न्ड पर्सन से हम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, इट इज रादर कलेक्टेड फ्रॉम अदर पीपल और एजेंसीज हु आर लाइकली टू हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर मेरे फोन का बैटरी लो, ये ब्लूटूथ का बैटरी लो बता रहा, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाता हूँ। So now let's move on with the same thing. Now see, if you want to collect the data on the healthcare facilities, हम लोग क्या करेंगे, indirect oral investigation की तरफ जाएंगे। और हम क्यों जाएंगे indirect oral investigation की तरफ? Because जो agencies है, जो basically हमारे एरिया के, लोकेलिटी के या म्यूनिसिपैलिटी लोकेलिटी के आपके कलेक्ट करती होंगी डेटा अदर इन्फॉर्मेशन, हम उसके पास जाएंगे और उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। Why? Because it is feasible. It will not be feasible to conduct research on personal basis with 200 families. तो क्योंकि ये feasible ही नहीं है, ये एक सही ऑप्शन नहीं है कि हम खुद जाके 200 फैमिलीज के घरों में जाके हम एक इन्वेस्टिगेशन करें। इट विल बी बेटर टू यूज द डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड रिलायबल प्राइवेट एजेंसीज।
तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कैसे होगा, या तो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हो एजेंसी, नंबर 1, और अगर प्राइवेट भी हो तो आप उस पर रिलाय कर सको, ऐसा हो। ऐसा नहीं हो जो कि बायस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो आपको जो डेटा है वो कभी भी रियल प्रेजेंट नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आजकल के न्यूज चैनल्स अगर आप देखोगे, बीट एनी न्यूज चैनल, आई एम नेमिंग एवरी न्यूज चैनल, जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक न्यूज, take whichever channel, they have their own biasness towards the political party, ऑलराइट। तो जो जिसको सपोर्ट कर रहा है वो उसके फेवर का डेटा निकाल कर लाता है और प्रेजेंट कर देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस डेटा को सिर्फ बिलीव करोगे, या वो जो बोल रहा है उसको सिर्फ बिलीव करोगे, या फिर यू आर गोइंग टू रिसर्च ऑन इट दैट वो कितना परसेंट सही बोल रहा है और कितना परसेंट झूठ है, और उसके बाद आप अपनी एक राय बनाओगे कि नहीं नहीं दिस पार्टी इज गुड और दैट पार्टी इज गुड, या फिर ये सही काम कर रहा है और वो सही काम कर रहा है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो डेटा कलेक्शन है, आप जिसके ऊपर बिलीव करके निकाल रहे हो और उसका एक पूरा का पूरा एनालाइज करके इंटरप्रेट करके आप लोगों को बता रहे हो, वो चीजें बहुत ही फिजिबल, बहुत ही सही जगह से आनी चाहिए, एंड इट शुड बी अ प्लेस व्हिच कैन बी ट्रस्टेबल। Alright, this will include less cost in terms of time and money involved, and we can also seek expert opinion on the same. एक तो इसके अंदर टाइम और पैसा कम लगेगा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है हम वो भी ले सकते हैं इफ वी गो थ्रू दिस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 34 पे है आपके टीआर जैन और बीके ओरे की किताब में, वो ये है कि यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल व्हिच इज नियरली 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम टाउन। As a student, you are keen to collect statistical information relating to literacy rate in your town. आप एज ए स्टूडेंट पता लगाना चाहते हो कि जो टाउन है उसका लिटरेसी रेट क्या है। Which mode of data collection will you prefer to adopt? Give reasons in support of your answer. चलो इसका आंसर कौन देगा मुझे फटाफट, make it fast. Read the question again. It is there in front of you. Yes, Karthik Kumera, go for it. Yes, Karthik. Sir, in this investigation, you can use indirect investigation. You can go with indirect. And why, may I know? Give reasons. Sir, you can use that under this investigation, you can use the data published by local government agencies and reliable non-government agencies. But what are your reasons to support this? Okay, fine, we have got it that we can get the data from there directly, but what are your reasons? Why would you love to go for this indirect investigation? Because it will take less time, because we can use the data published by government agencies. Okay. Okay, very good, Karthik. So now let's see the answer. And yes, one more thing, please, everyone, speak data. It's not data, it's data. D-A-T-A is pronounced as data. Okay? Please, हम लोग economics के student हैं. We cannot make this error. We should speak data rather than data. Okay? Chalo, we can use the indirect investigation. Very good, Karthik. You are right. Method in order to collect the information regarding the literacy rates in our town. Under this, we can use the data published by the local government agencies and other reliable non-government agencies. Local government agencies या फिर reliable non-government agencies के द्वारा जो data collect किया हुआ होगा, हम उसको read करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे? Behind choosing this method is that this method will prove less time consuming as well as it is a cheap method of collecting information. एक तो एक time consuming कम होगा और दूसरा एक cheap method होगा जिससे हमें information मिल जाएगा। और तीसरी बात, हम लोग क्यों उस पे जाएंगे? Why? Because it is impossible. Excuse me, sir. Yes, Himakshi Mathur. हाँ बोलो बेटा, बात है। टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं हो सकता इसमें? नहीं हो सकता बेटा, टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे होगा? आप खुद सोचो, आपके टाउन के अंदर जितने लोग हैं, आप सबको फोन कर सकते हो क्या? आपके पास इतना टाइम है कि आप इतने लोगों को फोन करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे और उसका रिसर्च? क्योंकि आपके पास एन्यूमरेटर्स तो है ही नहीं। आप एज ए स्टूडेंट सोचो, आप सबको कर पाओगे क्या कॉल? Answer no ही होगा। Himakshi has muted her conversation. Most probably the answer is no only. Please don't do all these things. बेटा आप क्लास 11th के बच्चे हो, आप लोग annotate करते हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूँ तब ऑफ कर सकता हूँ उसे। So please don't do this. This doesn't look good. Okay? So हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज या अदर नॉन रिलायबल गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ये डेटा कलेक्ट करेंगे और रीजन एक तो चीप हो जाएगा,
दूसरा टाइम कंज्यूमिंग लेस होगा, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके ओपिनियन दिए हुए होते हैं, जो भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जो डाले हुए होते हैं। तो हमें जब एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा तो हम अपना भी एक ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। देन वी कैन क्रिएट आवर ओन ओपिनियन एंड उस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एक रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। Okay, so this was the next question. Now we are going to move to page number 44. वहां पर क्वेश्चन था फ्रेम 5 two-way questions and 5 multiple choice questions relating to a questionnaire that you intend to design for collecting primary data on the level and composition of expenditure of the people in your locality. आप अपनी locality के अंदर जो expenditure हो रहा है उसका लेवल का पता लगाने के लिए एक प्राइमरी डेटा आपको कलेक्ट करना है। वो कैसे कलेक्ट करोगे? टू वे क्वेश्चंस, 5 टू वे क्वेश्चन होने चाहिए और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चनएयर बनाना है इसके अंदर। राघव मोदी, यस गो फॉर इट। राघव मोदी हैज रेज्ड हिज हैंड ऑलरेडी, तो राघव मोदी गो फॉर द आंसर प्लीज। सर मैं आंसर नहीं बताया सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। बोलो बेटा, पूछो। सर ये जो न्यूज चैनल्स होते हैं, हाँ सर ये कहाँ से अपना डेटा लेते हैं? सर रिपब्लिक भारत कहता है मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ, दूसरे चैनल कहते हैं मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ, या तो इनको कोई गलत डेटा देता है, ये पता नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ न्यूज चैनल देते हैं उनका मैं बता देता हूँ। आप अगर प्रॉपर्ली रीड करोगे तो BAARC एक न्यूज चैनल्स को जज करने का एक एजेंसी है, एंड देयर आर 1 or 2 मोर एजेंसीज। तो जो एजेंसी जो पॉइंट आउट करता है और जो जिसके फेवर में होता है, ये उस डेटा को प्रेजेंट कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो टीआरपी रेटिंग शो किया जाता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। जैसे आज तक का टीआरपी शायद 8 से 9 बहुत अच्छा होगा, पर रिपब्लिक का टीआरपी 7 से 8 बहुत अच्छा होगा। तो रिपब्लिक ने जितनी बार अपना आपको टीआरपी दिखाया होगा कि वी आर नंबर 1 चैनल, वो सिर्फ उस टीआरपी को लेके दिखा रहे होंगे जो 7 से 8 का टाइम होगा या 9 से 10 का टाइम होगा, प्राइम टाइम भी होगा, कि हमारा 60% व्यूअरशिप बढ़ गया या 70% व्यूअरशिप उससे ज्यादा है, वो उसके बेस पे होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से कि ये लोग अपने हिसाब से डेटा को घुमा फिरा के प्रेजेंट करते हैं और आपको प्रेजेंट करके बता देते हैं कि हम यहाँ पे नंबर 1 है। नो डाउट उनके डेटा प्रेजेंटेशन में गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो झूठ अगर दिखाएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ओवरऑल ट्रुथ नहीं होता। इट्स लाइक सेइंग दिस कि आई एम going to the market to buy say for instance potato. Okay, अब आप इस जो पूरा सेंटेंस है इसको आप आधा कर दो, I am going to the market, ठीक है। अब वो मार्केट जा रहा है, अब यही आंसर आप किसी और को दो, थर्ड पर्सन ने गया और किसी और को जाके बोला he said that he is going to the market। अब वो मार्केट जा रहा है, उसके बाद का क्या रिपोर्ट है वो किसी ने बताया नहीं। वो सामने वाले ने जज कर लिया, मार्केट गया अपने लिए टी शर्ट खरीदने के लिए, जबकि वो नीड का आइटम खरीदने गया पोटैटो। इट्स लाइक दिस, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो आधा आधा करके प्रेजेंट करते हैं। कैसे? जो पार्ट उनके न्यूज को सपोर्ट कर रहा है, उनके चैनल को सपोर्ट कर रहा है, वो पार्ट वो दिखाएंगे, और जो पार्ट उनके चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा वो पार्ट वो नहीं दिखाएंगे। लाइक दैट ओनली एवरी न्यूज चैनल इज डूइंग। वो झूठ नहीं कह रहे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ उतनी दे रहे हैं जितना उनको सपोर्ट कर रहा है, बाकी इंफॉर्मेशन वो हाइड करके रख ले रहे हैं, या फिर दूसरी चैनल अपने चैनल्स पे उस इंफॉर्मेशन को दिखा रही है क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहा है। आगे बात समझ में? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेम 5 पे 2 क्वेश्चंस, 5 two-way questions and 5 multiple choice questions relating to questionnaire that you intend to design for collecting primary data on the level and composition of expenditure of the people in your locality। अब देखो ये रहा इसका आंसर, हम लोग अगले पेज पे जाएंगे। क्वेश्चनएयर 2-way questions, तो हमने बनाया है नेम, एज, एड्रेस, सेक्स, मेल या फीमेल। ऑलराइट एवरीवन, अब पहला क्वेश्चन क्या है? इज योर मंथली एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन और लेस देन ₹15,000? तो हमने क्या पता लगाना था? यही पता लगाना था कि क्या एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर के लिए पहले हमें पता चलना चाहिए कि उसका एक्सपेंडिचर एक्चुअली कितना है, वो बंदा बताएगा। ग्रेटर देन या लेस देन, 2-way क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डू यू सेव अ पोर्शन ऑफ योर इनकम? अगेन 2-way क्वेश्चन है, यस नो। डू यू स्पेंड लेस टाइम, लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ योर इनकम ऑन फूड? अगेन लेस देन और इक्वल है, ठीक है। इनकम का 50% या फिर उससे कम या उससे ज्यादा आप फूड पे खर्चा करते हो या किसी और चीज पे खर्चा करते हो। डू यू स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स? बंदा जो लग्जरी आइटम्स में खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस या नो। अगेन 2-way क्वेश्चन है। एंड अगेन, डज यू स्पेंड मोर देन और इक्वल टू 30% ऑफ योर इनकम ऑन एजुकेशन? एजुकेशन के ऊपर आप कितना परसेंट खर्चा कर रहे हो, इक्वल और ग्रेटर? अगेन 2-way क्वेश्चन है। तो ये 2-way क्वेश्चनएयर बन गया, 5 क्वेश्चन हो गए। अगले 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। अगेन वहां पे नेम, एज, सेक्स वाला आपको वो दिया हुआ है, और हाउ मच इज योर मंथली इनकम और पॉकेट मनी। इनकम या पॉकेट मनी कितना है आपका? लेस देन ₹1,000 to 3,000,
रुपीज 3000 टू 5000, रुपीज 5000 टू 7000, अबव रुपीज 7000। यहाँ पे पॉकेट मनी क्यों आया? क्योंकि ये हो सकता है कि किसी स्टूडेंट से भी बात कर रहे हो और उनको पॉकेट मनी मिलती हो। बीकानेर में आई डोंट नो मिलती है कि नहीं मिलती, बट जनरली हम लोग यहाँ रहते थे कैलकाटा में, व्हेन आई वाज इन क्लास कॉलेज, तो मुझे रोज 20 रुपए मिलते थे एवरी डे ट्रैवलिंग के लिए, तो मैं उसे बचा लिया करता था, वॉक करके चला जाता था, बस में बैठता नहीं था, ताकि 20 रुपए बच जाए, महीने में मेरे 250 रुपए हो जाए और मैं एक टी शर्ट खरीद लूं। तो ये सेविंग्स का तरीका था मेरा, एंड वॉक करके हमें मजा भी आ जाता है क्योंकि गंगा घाट के ऊपर से वॉक करते हैं तो अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। How often you go out for dinner or lunch? आप कितनी बार लंच या डिनर पे जाते हो? Every day, fortnightly, never, once a week or occasionally? Again, multiple choice question. On which item do you spend the most? Food, school fees, others, rent, clothing. Again, multiple choice question. ऐसे करके 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। What portion of your income do you keep aside for illness? Illness के लिए कितना portion of money आप साइड में रखते हो? और how much you save every month? हर महीने आप कितना सेव करते हो? उसके भी 5 ऑप्शन दिए गए। So देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी क्वेश्चन आपको बना के दिखा दिया गया, और 5 जो 2 वे क्वेश्चन थे उसका भी क्वेश्चन आपको बना के दिखा दिया गया। ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन जब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक जो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि वो प्रोजेक्ट जो है आप टीम वर्क में करो। एक बार स्कूल खुल जाए, जहां तक है सितंबर में, और अगर स्कूल नहीं खुलता है, हमें पता चलता है कि स्कूल खुलने में भी और टाइम लगेगा, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट वर्क गूगल फॉर्म के थ्रू आपको देंगे, और आपको गूगल फॉर्म के थ्रू भी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी करना होगा और आपको डेटा कलेक्ट भी करने होंगे। उसके बेस पर आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन एनालाइज इंटरप्रेट करके आप मेरे सामने प्रेजेंट करोगे उस प्रोजेक्ट को। दिस विल बी अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑफ व्हाट एन इकोनॉमिस्ट कैन डू एंड हाउ यू नीड टू गो फर्दर इन इकोनॉमिक्स। ओके, पेज नंबर 44 पर आगे के कंप्लीट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस थे। ये आपके जो बोलते हैं उसको फिल इन द ब्लैंक से। सेकेंडरी डेटा इज द डेटा collected by other persons. Sources of secondary data are government publications, semi-government publications and private publications. Primary data are always collected directly from the individuals who constitute the universe of study. उसको हम universe मानते हैं, जो भी individuals होते हैं। और pilot survey is conducted to assess the quality of questionnaire. ये 4 था, और उसके आंसर्स के रीजंस बताए हुए हैं नीचे। कंप्लीट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करके उसके रीजंस बताए हुए हैं कि हमने वो आंसर क्यों लिखा हुआ है। ये मैं आपके साथ आज शेयर कर लूंगा। कल हम लोग इसका जो नेक्स्ट है चैप्टर, जो सेंसस वाला चैप्टर है, जो कि हमने कल लिया प्रेजेंटेशन में, लेकिन उसके जो क्वेश्चन आंसर है टीआर जैन के, वो भी पढ़ेंगे, और हो सकता है 2-3-4 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के भी पढ़ लें। ठीक है, तो कल ये चैप्टर राउंड अबाउट कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो पीडीएफ है ये मैं आज आपके साथ शेयर कर लूंगा, ताकि आज आप इस पीडीएफ को अपने कॉपीज में, फेयर कॉपीज में कंप्लीट कर लें। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, जय श्री कृष्ण।